हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Jainism. What is Jainism and what is the feature here? So Jainism is a Vardhaman Mahabir. The Vardhaman Mahabir is regarded as the founder of Jainism. There is the most important point here. Note down. The Vardhaman Mahabir is regarded to the founder of Jainism, and he was born in 599 BC. That is also important near the Vaishali in Bihar. He was the 24th and the last Tirthakara of the Jainism. Jainism believed that is the main goal of a human life in the purification of soul and attainment of there is a nirvana, and which mean to the freedom from a birth and death. This can be achieved not a thought, rituals and sacrifice, but by the presence of the Tritana and Panch Mahavarata is a three. Natna is the three jewels: right to a faith, right to the knowledge, and right conduct. There is a three. Ratna is the most important for a Jainism. There is a mean of a jewel. Three jewels are the right of faith, right to knowledge, and right to conduct, which can be lead to the liberations and right conduct mean observances of a five grace balls. The ahimsa, do not commit violence. The next era, a satya bachan, do not speak lies. Asatya, do not steal, and brahmacharya, do not indulge in a sex act, and aparigraha is not acquired to properties, and the householders bear respect to the observe meddler from to the practice of this rituals called is anvarata is a small walls is a comparison to their monk. So what of can be noticed that will there are Brahmanisms and was there is a ritual to the Oriental religious life new faith from the conductor oriented. There is the most important. The most necessary feature of Jainism was a concept of here Anekanvarda and Swanvarda. That is the most important here, Anekvarda and Swanvarda, and it means that is a truth can be a view from to the Anuvrata. Anuka and the various angle. Another important feature of Jainism was is the emphasis was extremely from to the penances and authorities. There is an act of non-violence, and where there is emphasis on the strict discipline line was one of their reason why it could not be attract the masses in the large number. Mahabira used to the Prakritic language to the spread is a message. There is a most important here. Mahabira used a Prakritic language to spread his message. However, just like other religions, Jainism also could not remain united from every long and later divided into two sects. The first called to the here Digambara. This is a whose his mind is a naked, and second here Sutambara. There is a who wear a white cloth. There is a most important divided by the two here. There are Digambara and Sutambara. There is a Digambara here is a who is the mind the naked, and Sutambara is a who wear a white cloth. There is the most important for Jainism. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर जो है जनपद से साम्राज्य की ओर, इसके अंतर्गत हमारे दो यहाँ पर आए हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत, जो कि काफ़ी मानने में इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जैन धर्म से आपका काफ़ी जो है परिचित ही हो गया, बौद्ध धर्म से तो परिचित हो ही, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको जो है कुछ बातों की नॉलेज होना चाहिए जो हमारे कंसेप्ट में है। अगर इस कंसेप्ट को अगर अच्छे से याद कर लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी पेपर के लिए जो है लिखने लायक नहीं रहोगे। हर पेपर के लिए आपको जो है लिखने के लायक रहोगे अगर वो जैन धर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है या बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है जैन धर्म। देखिए जैन धर्म जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वर्धमान महावीर को जैन धर्म का स्थापक माना जाता है, यानी वर्धमान महावीर जो थे जैन धर्म के स्थापक थे। उनका जन्म जो था 599
यानी 599 ईसा पूर्व बिहार में वैशाली के निकट हुआ था। ठीक है, यानी 599 ईसा पूर्व बिहार में वैशाली के निकट हुआ था, जो कि आपको याद रखना चाहिए। वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थक थे। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जो ये वर्धमान महावीर थे, ठीक है, ये 24वें, ठीक है, और अंतिम तीर्थक थे। इससे पहले 23 तीर्थक और हो चुके थे। जैन धर्म की आस्था थी कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि और निर्वाह प्राप्त करना, यानी मरण जीवन की जो आवागमन से मुक्ति पाना। हर एक इंसानों को जो है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है, यानी जन्म और मरण की जो है कांडों से मुक्त होना चाहता है हर कोई इंसान। उनका कहना था कि इससे धार्मिक अनुष्ठानों और पशु बलि से जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी आप कोई अनुष्ठान करके या पशु बलि को दे के जो है मुक्ति प्राप्त आप नहीं कर सकते हो, बल्कि इसकी प्राप्ति त्रिरत्न और पंच महाव्रत से होगी। और 5 महाव्रत और त्रिरत्न बहुत ही महत्वपूर्ण इनके समाज में माना जाता है। त्रिरत्न अथवा 3 स्वर्ग सिद्धांत। देखिए 3 स्वर्ग सिद्धांत क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हर एक इंसान को जो है अनुसरण करना चाहिए। जैसे उचित विश्वास रखना किसी पे, उचित ज्ञान रखना, उचित व्यवहार, जिन पर चलकर मोक्ष की प्राप्त किया जा सकता है। देखिए कहते हैं कभी भी किसी चीज़ को किसी को बताओ तो हमेशा जो है दूसरे व्यक्तियों पर विश्वास करना जरूरी है, उचित ज्ञान भी होना जरूरी है और उचित व्यवहार भी जरूरी है। और ये इनका त्रिरत्न सिद्धांत था। मैं आपको पढ़ाता हूँ तो इसका मतलब मुझे भी इसका नॉलेज होगा, तभी मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो ये बात यहाँ पर भी आती है कि उचित व्यवहार, जिन पर चलकर अगर मोक्ष प्राप्त करना है, उचित ज्ञान भी होना जरूरी है। ज्ञान रहेगा तभी आप किसी को समझा सकते हो, क्योंकि मैंने हर जगह से जो है दुनिया में खेला है, जाना है कि यहाँ पर क्या चल रहे हैं और कैसे हैं। ठीक है, इसलिए मैं विवश होकर आप लोगों के लिए जो है चैप्टर मैं लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि MCQ से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक अगर हमें कोई कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास या किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप नहीं कर सकते हो उसको अच्छे से। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर त्रिरत्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि आपको जो है मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहला सिद्धांत था कि उचित विश्वास भी जरूरी है। दूसरी बात होता है, मेरे को ऊपर आता है कि मुझे उचित ज्ञान भी होना जरूरी है। ठीक है, और इसके साथ आपको उचित व्यवहार भी करना है। यानी यही 3 रत्न जो है मैं अपने और आपके रिगार्डिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उचित विश्वास आपको होना चाहिए, उचित ज्ञान भी होना जरूरी है, उचित व्यवहार, जिन पर चलकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उचित व्यवहार का अभिप्राय है कि 5 नियमों पर चलने की शपथ लेना। देखिए उचित व्यवहार का अभिप्राय यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो इसको 5 नियम पर चलने का शपथ लेना चाहिए। अब वो 5 नियम कौन से हैं देखते हैं। पहला नियम तो यही कहता है कि अहिंसा। देखिए किसी प्रकार की हिंसा न करे, यानी अहिंसा का सबसे पहला जो है सिद्धांत पे आपको चलना पड़ेगा। सत्य वचन, यानी झूठ मत बोलो। झूठ बोल के जो है हम कुछ तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जीवन में हमेशा पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा सत्य बोलिए, चाहे जो मर्जी हो, चाहे लोग आपको पसंद करें चाहे न करें, झूठ कभी ना बोलो। कहते हैं झूठ की खेती कुछ ही समय के लिए होता है, लेकिन सत्य हमेशा ही उज्जवल होता है। सत्य को कोई धुंधला नहीं कर सकता है। आज के समय में बेशक ही झूठ का बोलबाला हो, लेकिन कहते हैं झूठ के आगे सत्य का ही चल सकता है, झूठ का कभी नहीं चलता है। तो इसलिए जो यहाँ पर महावीर ने साफ शब्दों में कहा था कि अहिंसा, सत्य वचन और असत्य, यानी चोरी न करे। चोरी करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, चोरी नहीं करना चाहिए। अब देखिए आजकल के समय में एग्ज़ाम ऐसा हो गया है, जो बच्चे जो है आए दिन जो है मोबाइल से जो है चोरी कर रहे हैं, मोबाइल के टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज हाथ वाले मोबाइल लेके जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो कभी मोबाइल लेके जाते हैं, कहते हैं टीचर भी कुछ नहीं कहते, धड़ल्ले से लोग चोरी कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब आप जो 5 नियमों के पालन करने में असमर्थ हो चुके हो। उसके बाद है ब्रह्मचार्य, यानी भोग विलास में लिप्त न हो। कहते हैं आज के समय में देखा जाए तो लोग ब्रह्मचार्य को तो त्याग ही दिए हैं। आज तो बच्चे जन्म लेते नहीं है कि मोबाइल में उनके आ जाते हैं और तरह तरह के दृश्य दिखने लग जाते हैं, तो उन्होंने ब्रह्मचार्य की अवस्था को तो भूल ही चुके हैं। लेकिन महावीर ऐसा नहीं कहते हैं, कहते हैं 5 चीज़ों को आपको पालन करना पड़ेगा। उसके पश्चात है अपरिहाग्रह, यानी संपत्ति का अधिग्रहण। कहते हैं ये 5 तत्व वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के समय में हर एक व्यक्ति को मानना चाहिए। अहिंसा, सत्य वचन,
असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये पांचों नियम जो है इंसानों के जीवन में सब कुछ बदल सकता है और इंसान एक सत्य की तरफ बढ़ सकता है। और मेरे विश्वास से वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा, हमेशा ही उसको जो है जीत सदैव ही उसके साथ चलेगा। तो ये पांच जो है कर्तव्य, पांच जो महत्वपूर्ण नियम है उसका आप अनुसरण कीजिए। जैन मुनियों की तुलना में गृहस्थ लोगों में इस जो है अनुव्रत यानी छोटे संकल्प कहे जाने वाले सद्गुणों के जो है कठोर अनुपालन की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि ये करना बड़ी मुश्किल होता है कि वही व्यक्ति इन पांचों नियमों का अनुसरण कर सकता है जो सत्य पर जो है अपना जीवन आधारित किया हो। लेकिन आपको पता है कि आजकल सत्य बहुत ही लोग कम बोलते हैं और सत्य की जगह पर झूठ बोल के अपना कार्य को पुण्य करते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि सत्य ही सही है, सत्य ही वचन है और सत्य पे ही चलना प्रत्येक इंसान का जो है धर्म होना चाहिए। अंत हम यह देख सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म धार्मिक कर्मकांड पर जो है बल देता था, तो यह नया धर्म व्यवहार आधारित था। जौन धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता थी अनेकतावाद या कहे हम स्वैधवाद। इसका अर्थ यही कि सत्य को अनेक अथवा विविध कोणों से परखा जा सकता था। सत्य को अगर आप देखो तो कई क्षेत्र से जो है उसको परखा जा सकता है। सत्य कहीं से भी आप देख सकते हो। सत्य का एक कहते हैं सत्य का एक आंख नहीं होता है, करोड़ों आंख होते हैं, ठीक है, जिसको आप कहीं से भी सत्य को जो है आप परख सकते हो। सत्य आप में है, तभी तो कहता हूँ कभी भी कुछ भी हो सत्य बोल दो, चाहे इसका परिणाम जो भी मर्जी हो, इससे न डरो। बाद में देखना वो व्यक्ति जो होगा आपका जो है कायल हो जाएगा, क्योंकि आपने सत्य का अनुसरण किया है। जैन धर्म की एक और प्रमुख विशेषता थी कठोर प्रायश्चित, यानी आडंबरहीनता और कठोर अहिंसा धर्म का पालन करना। शायद कठोर अनुशासन के सिद्धांतों पर बल देने के कारण ही बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी इस धर्म की ओर आकर्षित नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना बहुत कठोरता थी। मैं जानता हूँ एक बात कि जहाँ कठोरता होती है वहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति को सुख का आराम चाहिए, हर को जो है आसान जीवन चाहिए। इसलिए कठोर अनुशासन का सिद्धांत रहने के कारण कहते हैं इस धर्म में बहुत ही कम लोग आकर्षित हुए और कम ही लोगों ने इसका अनुसरण किया, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। महावीर ने अपने सिद्धांतों संदेशों के प्रचार के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था। यद्यपि अन्य धर्मों की तरह जैन धर्म भी बहुत लंबी अवधि तक जो है संग्रहित नहीं रह सका और ये भी जो है दो भागों में विभक्त हो गया। एक दिगंबर में कन्वर्ट हो गया जो निवस्त्र रहते हैं, और एक जो था श्वेतांबर में जो है विभक्त हो गया जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। नामक दो वर्गों में ये बट गया। तो कहते हैं कोई भी धर्म जो है कई भागों में बटा है और सबने अपने अपने अनुसार धर्म को बना लिया है। लेकिन धर्म, मैं एक बात जानता हूँ, धर्म का अर्थ इतना होता है कि आपको मानव बन के अच्छे सादगी के साथ अपना जीवन यापन करना है, क्योंकि सभी धर्म एक ही चीज़ हमें सिखाती है, सत्य पे चलना, सत्य बोलना और सत्य कर्म ही करना।